So let's talk about financial education and the power of compounding. I'm sure by the end of this video, काफी लोगों की आंखें खुल जाएंगी. A lot of you who know me, but those of you who don't know me, I'm an IT professional. I started my career long back in 2006, and I got fired from my first job for a very weird reason. And then I lost my job in 2017, and then in 2019 because of my very high salary. And that's when I understood the real meaning of that sentence कि जॉब को इतना भी प्यार मत करो because you never know कब आपकी जॉब आपको प्यार करना बंद कर दे. But like जैसे अकल बादाम खा के नहीं आती, ठोकर खा के आती है. So I started my entrepreneurial journey in 2013, but it took me a very long time to get rid of that disease called as job mindset कि मुझे तो बस सेफ ही खेलना है और मुझे सिर्फ नौकरी ही करनी है. And नौकरी के बाद सब कुछ actually risky है. That is what I used to think. So in 2019 Jan, when I got fired from my company in Mumbai, as it went totally bankrupt and unable to pay me salary, I was making slightly more than 2 lakhs a month, and that was the last nail in the coffin. I took a very strong decision कि पीयूष बेटा बहुत हो गया टाइम पास करते हुए. Let's get serious about creating wealth. और आज भी अगर प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रहोगे तो लाइफ में सिर्फ एक नौकरी बन के नौकरी करते रहोगे. And that's how I got serious about creating wealth and building assets. I learned that the magical formula of studying hard, getting a good job, and life is set is definitely not for me. So I will be sharing my perspective on creating wealth, long-term wealth. So after studying so many successful and wealthy people, reading hundreds of books, and watching countless and thousands of videos, I've eventually learned why middle class people are middle class and why wealthy people are actually wealthy. I'm sure you'll love watching this video, so stay tuned until the end and make sure to subscribe to this channel. So, few days back, I was reading about Sushil Kumar, who won 5 crore rupees in Kaun Banega Crorepati, and now in 2022, he has gone totally bankrupt, means he has lost all his money. Uska diwala phunk gaya. Another example, I read once that Donald Trump, who is worth billions now, lost all his money few years back, and he was actually busted broke, but he amassed all his fortune back and even much more. Why? Because of his mindset. Unbelievable, right? कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? It's because poor and middle class people जैसे भी होते हैं, it's because of their own mindset. अब एक मिडिल क्लास इंसान को बचपन से यही सिखाया जाता है कि तूने सिर्फ सेफ खेलना है, तूने अच्छे से स्टडी करनी है, बस पढ़ाई करनी है, मार्क्स अच्छे लाने और अच्छी सी बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री लेनी है. द फनी थिंग इज, एज अ किड वो बहुत ही डेयरिंग था और बहुत ही बड़ा ड्रीमर था. उसको आप पूछते हो कि बेटे बड़े हो के आप क्या बनोगे, तो वो ये नहीं कहता कि नो मॉट मैं सेफ खेलूंगा, मैं सिर्फ एक नौकरी ही करूंगा. उसका जॉब ये होता है कि मैं कुछ बड़ा करूंगा. आई इधर बिकम एन एस्ट्रोनॉट, इधर आई बिकम अ पायलट, या मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा. बट प्रॉब्लम होती है 90% टाइम्स उसकी फैमिली, जैसे उसके पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी, सब लोग सो कॉल्ड दीज ग्रोन अप्स, वो उसको इतनी बार कहते हैं तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा, ये सब हमारे बस की बात नहीं है, सिर्फ एक सेफ ही खेलना है. सो हम एक सिंपल लोग हैं, हम सिंपल लोगों के लिए सिर्फ एक नौकरी ही हमें करना चाहिए. एज अ 5-year-old किड हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते अदर देन बिलीविंग इन दोस सो कॉल्ड अथॉरिटी फिगर्स. एंड दैट इज हाउ हमारी कंडीशनिंग स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिव कंडीशनिंग. हम सबके साथ यूजुअली ऐसा ही होता है. एंड लेट मी शेयर अ वेरी डिप्रेसिंग कोट, एक गरीब दिमाग एक अमीर इंसान कभी नहीं बना सकता. लेट मी रिपीट, एक गरीब दिमाग एक अमीर इंसान कभी नहीं बना सकता. सो लेट्स टॉक अबाउट पुअर और गरीब माइंडसेट. बेसिकली दीज पीपल ट्रेड देयर टाइम टू मेक देयर मनी, मीन्स समय दिया फिर पैसे कमाए, फिर समय दिया फिर पैसे कमाए. बट प्रॉब्लम कम्स, अगर टाइम ट्रेड करना बंद कर दिया तो इनकम आनी भी बंद हो जाती है, जैसे मेरे साथ हुआ व्हेन आई लॉस्ट माय जॉब इन 2017 एंड 2019. सो पुअर एंड मिडिल क्लास माइंडसेट पीपल थिंक वाओ, अभी मैंने अपना करियर स्टार्ट कर लिया है एट द एज ऑफ 20-22, मे बी द 20-25,000 रुपीज अ मंथ सैलरी. अभी भी तो मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ. अभी मैं पहले पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेता था, अब मैं शायद उनको दे सकता हूँ. एंड आई वर्क रियली हार्ड फॉर 2 to 3 years और मे बी 5 years, और मेरी सैलरी 20-25,000 मंथ से 30-40,000 रुपीज अ मंथ हो जाएगी. उसका सोच ऐसे होती है, बट इसमें कुछ गलत बात नहीं है. ज्यादा पैसा ऑफकोर्स बनाना चाहिए, बट वो इनकम के साथ साथ लाइबिलिटीज भी बना लेता है. ही बिलीव्स इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि मुझे तो लाइफ को अभी इंजॉय करना है, वो भी अभी के अभी. ही स्टार्ट्स पार्टिंग आउट एंड इवन बाइज एन आईफोन वर्थ मोर देन 1 लाख अ मंथ. और सबसे बड़ी गलती क्या करता है, वो ईएमआई पे ले लेता है. उसको ये नहीं पता होता है कि उसका पैसा लाइबिलिटीज में जा रहा है एंड नॉट इन बिल्डिंग एसेट्स. सम ऑफ यू माइट नो दीज टर्म्स, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पीपल डोंट. पता होने में और उसको समझ के इंप्लीमेंट करने में बहुत फर्क होता है. एसेट्स वो चीज होती हैं जो हमें इनकम जनरेट करने देती हैं, और लाइबिलिटीज हमारी जेब से पैसा निकाल लेती है. नाउ नथिंग रॉन्ग विद दिस, बट सिर्फ ये करके वेल्थ क्रिएट कभी नहीं होगी. सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर माइंडसेट कॉल्ड एज रिच और वेल्थ माइंडसेट. नाउ rich people are rich because they have a totally different perception about making money and how to spend and invest their money. Most important distinction is they don't believe in trading their time to make money. In fact, वो leverage में believe करते हैं. ये वर्ड मैंने कभी नहीं सुना था पहले. वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ करूं कि एक टीम बना लूं या एक नेटवर्क बना लूं जिसमें मुझसे ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा एजुकेटेड लोग हो जो मेरे लिए काम करे.
This concept is called as time multiplication or time leverage. For example, a company with a 1 lakh employees, जहाँ पे हर इंसान, every employee maybe is putting in 9 to 10 hours per day. Total productivity अगर देखेंगे 1 lakh employees multiplied by 9 hours per day will give a productivity of 9 lakh hours of productivity every single day for that company owner. While a poor mindset person ये सोचता ही नहीं, इसको पता ही नहीं इस कंसेप्ट के बारे में. वो क्या सोचता है, मेरे को जो भी मैं 25,000 रुपये या 30,000 रुपये पर मंथ कमाता हूँ सिर्फ मेरे एफर्ट से आना चाहिए. जो कंपनी ओनर्स हैं वो क्या सोचते हैं, मेरे एफर्ट से आऊंगा तो मैं कभी रिच नहीं बनूंगा, मेरे को मल्टीपल लोगों के एफर्ट से इतना सारा पैसा बनाना है. सो उनका फोकस क्या होता है, नेटवर्क बिल्डिंग. इनफैक्ट जॉब के साथ साथ कुछ भी अगर हम उसको बताए ना, वो उसको स्कैम ही लगेगा एम्प्लॉय को. क्यों? बिकॉज उसका माइंडसेट क्या है, मेरे को तो सेफ खेलना है. और जॉब के बाद कोई भी चीज अगर उसको बताई जाए वो उसको इम्पॉसिबल या स्कैम ही लगती है उसके लिए. Another difference. Poor and middle class people जितना भी पैसा कमाते हैं, they spend majority of their income, and in worst cases they spend all their money with no saving or investing. Even if अगर उन्होंने गलती से कुछ पैसे बचा भी लिए, say 2 or 3,000 rupees a month, they are not financially literate. उनको कोई आइडिया नहीं, कोई क्लू नहीं उनको उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें, क्या करें उस पैसे का. While rich mindset people believe in multiplying their money, multiplication, and not only that, they start teaching this concept to their children also at a very early age. वो उनको सिखाते हैं कि बेटा ऐसे कुछ करो कि पैसे से पैसे बने और जिंदगी भर एक कोलों के बैल की तरह काम नहीं करना है, जस्ट लाइक मोस्ट एम्प्लॉइज. और जब ये चीज मैंने सीखी तो मैंने रियलाइज करा मैं उस कोलों के बैल की तरह था. जब तक मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ तो पैसा आ रहा है, और अगर कंपनी ने मेरे को निकाल दिया मेरी इनकम जीरो हो जाएगी. क्यों? लेवरेजिंग ही नहीं वहां पे. Another difference. Poor and middle class people mostly have a flawed way of looking at money. उनको बचपन से बहुत फालतू चीजें सिखाई जाती हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, हमें पैसे नहीं प्यार चाहिए, या फिर हमें पैसे नहीं फैमिली टाइम चाहिए. They mostly think negative about money कि अगर मैंने बहुत सारे पैसे बना लिए तो हो सकता है कि मैं सारी लूज ना कर दूं, कहीं मैं बहुत सारे पैसे बना लूं, मेरे को बहुत सारे टैक्स तो नहीं कहीं पे करना पड़ जाए. They usually have a very stupid thought process about money कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते as love, which is a very 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 dumb comparison. Suppose अगर मैं आपको पूछूं is your arm more important or your leg? I'm sure they both are important. आपका हाथ भी important, आपका लेग भी important है, दोनों की एक अलग इंपॉर्टेंस है. But because of this flawed mindset की either and or, या तो ये या तो वो, उनके पास कभी भी इनफ पैसे नहीं होते. While wealthy people think money is extremely important and they feel and need it all. Successful and wealthy people, they don't believe in this or logic. They want everything. They believe they deserve good health, lots of wealth, good relationships, etc. While poor and middle class people think या तो मैं पैसे कमा सकता हूँ या फिर मैं अच्छी हेल्थ बना सकता हूँ, या तो मैं पैसे बना सकता हूँ या फिर मैं अच्छे रिलेशनशिप बना सकता हूँ. This either or mindset is actually the big problem. Now, let's do a very small comparison between three friends, Ramesh, Suresh and Gopesh. They all are 20 years of age. Ramesh का एक बहुत ही strong financial knowledge होता है और वो at the age of 20 just 5,000 rupees a month से investing को start करता है, saving करता है और investing करता है. In 1 year वो कितने save करेगा? 5,000 rupees a month multiplied by 12 months is 60,000 rupees. So अगर वो 40 साल तक लगातार इन्वेस्ट करता है without touching that money, वो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना बन जाता है? अप्रॉक्सीमेटली 24 lakhs. अभी रमेश का दूसरा फ्रेंड था सुरेश, उसको एक बहुत ही एवरेज फाइनेंशियल नॉलेज थी. उसको पार्टी करने का, उसको ट्रैवल करने का, ट्रैकिंग का बहुत शौक था. सो वो 10 साल वो कुछ इन्वेस्टिंग ही करता ही नहीं है. सो वो 30 ईयर्स की एज में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, बट मोर देन डबल द अमाउंट जो कि रमेश कर रहा था. सो सुरेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है फ्रॉम एट एन इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ 12,500 रुपीज एट द एज ऑफ 30 ईयर्स. तो अगर वो 30 साल तक टोटल इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कितना अमाउंट बनता है? एक साल में कितना हुआ? 1.5 लाख. और उसको 30 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज अप्रॉक्सीमेटली 45 lakhs. गोपेश जो थर्ड फ्रेंड था वो इन तीनों से एक और कदम आगे था. उसको इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट का कुछ पता ही नहीं था सच. वो 20 साल इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है. वो 40 ईयर्स की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है और कितना अमाउंट से स्टार्ट करता है? सिर्फ 25,000 रुपए, विच इज 5 टाइम्स जो पहले फ्रेंड ने स्टार्ट किया था. सो रमेश ने 5,000 रुपए से स्टार्ट किया एज 20. सुरेश ने 12,500 रुपीज अ मंथ से स्टार्ट किया एट एज 30, वाइल गोपेश ने 25,000 रुपए पर मंथ से स्टार्ट किया एट एज 40. सो 25,000 रुपीज अ मंथ इंटू 12 इज 3 lakhs a year जो उसने सेव किया. और उसको अगर 60 ईयर से टोटल इन्वेस्टमेंट करेगा तो कितना होता है? 3 lakhs मल्टीप्लाई बाय 20, 60 lakhs. सो अगर हम देखें रमेश ने 24 लाख रुपए सेव किया इन 40 ईयर्स, सुरेश ने 45 लाख सेव किया 30 ईयर्स में, वाइल गोपेश सेव्स 60 लाख इन 20 ईयर्स. सो आइडियली गोपेश का पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा और बेटर होना चाहिए बिकॉज उसने सबसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया. बट इट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू. अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूं दैट विल टोटली ब्लो अवे यू. लेट्स शेयर सम माइंड ब्लोइंग फिगर्स नाउ. There's a concept called as compounding interest, also known as the 8th wonder of the world. अभी आप गूगल पे सर्च करिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर. बहुत सारे आपको कैलकुलेटर मिलेंगे, आप कोई भी रैंडम कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं. मैंने जैसे एक रैंडम कैलकुलेटर ओपन कर लिया जो कि HDFC लाइफ का है.
अगर इन फिगर्स को हम उसमें डालें तो हम उसमें देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली। सो अगर हमें टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर हमने डाला है तो कितना होता है, बैकवर्ड स्टार्ट करते हैं और गोपेश के उसमें फिगर्स डालते हैं। सो अगर गोपेश 25,000 रुपये 25,000 रुपीज अ मंथ से स्टार्ट करता है एट द एज ऑफ 40 फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो 60 लाख का होता है वो कितना बन जाता है इन अनदर 20 ईयर्स। दैट इज अ वेरी वेरी इंप्रेसिव सम which is 3.84 crores, which is approximately 6 times the investment amount. Very impressive, right? 3.8 crores. Similarly, अगर हम ये फिगर सुरेश के लिए अगर डालें जिसने 30 years की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, so if Suresh starts investing 12,500 rupees a month at the age of 30 for next 30 years, उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो कि गोपेश से भी कम है, which is 45 lakhs, लेकिन उस वो टोटल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बन के वो बन जाता है 8.76 crores, which is more than double than गोपेश। अनबिलीवेबल, राइट? गोपेश के 60 लाख 3.84 करोड़ बने, बट सुरेश के 45 लाख 8.76 करोड़ बने। व्हाई? विच इज मोर देन एक्चुअली डबल देन गोपेश। क्यों? इट इज नॉट अबाउट कि पैसा किसने ज्यादा इन्वेस्ट किया, इट इज ऑल अबाउट कि कितने समय तक इन्वेस्ट किया, बिकॉज उनका लेंथ ऑफ टाइम एक्चुअली वो बढ़ जाता है, एंड दैट्स द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग किक्स इन। सिमिलरली अगर हम रमेश की अगर फिगर्स डालें, हमें तो लगेगा कि रमेश ने तो सिर्फ 5,000 रुपीज मंथ से इन्वेस्ट किया, चाहे भले 40 साल इन्वेस्ट किया, बट अमाउंट कितना था, कुछ भी नहीं था। सो लेकिन अगर उसको ध्यान से अगर देखें तो उसका जो 24 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था वो पता है कितना बनता है अगर आप उस कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर में डालोगे, 15.7 करोड़। राइट? दैट इज टोटली अनबिलीवेबल। मैंने जब ये देखा मेरा ब्रेन तो हो गया फाइल नॉट फाउंड। आई वाज लाइक वाओ। सपोज अगर हम इस जस्ट फिगर्स को थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर वो जो हमने 15% इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट किए थे सारे नंबर्स, अगर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम चेंज कर दें, जस्ट 18% कर दें, तो वो जो 15 करोड़ का जो अमाउंट था रमेश का वो बन जाता है 42.92 करोड़, विच इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। वाओ, दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जहां पे मैजिक होता है कितने टाइम तक आपने पैसे को इन्वेस्ट किया और उसको टच नहीं करा। सो 5,000 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 40 years एट 15% इज फार बेटर देन 12,500 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 30 years एंड 25,000 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 20 years। सो द की इज लेंथ ऑफ टाइम, आपने कितने समय तक पैसे को इन्वेस्ट किया, दैट्स द होल की। सो अ क्विक रिकैप ऑन पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने 5,000 रुपीज एवरी मंथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, एक साल में आपने कितना इन्वेस्ट किया, 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपीज। अगर हम सिर्फ बेयर मिनिमम 15% भी रिटर्न पकड़े चलें, आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, आप उसको डेट में कहीं पे भी कर सकते हो, एनीवेयर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, टोटली जहां पे आपकी इच्छा है, राइट? सो वो 60,000 रुपीज साल का हो जाता है। अगर उसमें 15% का इंटरेस्ट भी लगाए तो कितना होगा, 60,000 प्लस 15% इज 69,000 रुपीज। तो साल के बाद आपका जो 60,000 का जो टोटल कैपिटल था, इन्वेस्टेड अमाउंट था, वो 69,000 हो गया। इन एवरी सिंगल मंथ आप उसमें कंटिन्यूसली 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करते जा रहे हो। अगर आपने उस अमाउंट को बिल्कुल भी टच नहीं करा तो 20 साल के बाद आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 12 लाख। बट क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, हम इन्वेस्टेड अमाउंट में ब्याज ऐड किया, उस ब्याज में फिर से और इंटरेस्ट और ब्याज ऐड किया, वहां से पावर आ जाती है। सो वो जो टोटल अमाउंट था वो 75 लाख रुपीज हो जाता है, विच इज मोर देन 6 times योर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। माई बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज एट द एज ऑफ 23 आई डिड वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, एंड दैट टाइम आई रिमेंबर iPhone 3G वॉज लॉन्चिंग और मैंने 36,000 रुपीज कैश पेमेंट पे iPhone बाय किया था, राइट? बट दैट टाइम आई वॉज सुपर प्राउड ओनर, वाओ मैंने एक एप्पल प्रोडक्ट लिया। वाई? इट सेटिस्फाइड माई ईगो। Few months later, my sister bought a brand new laptop worth 50,000 from my dad. I did another blunder. एक और गलती करी मैंने। क्या किया? क्योंकि मेरी बहन के पास एक नया लैपटॉप आया, अभी मेरे को भी नया लैपटॉप चाहिए, भेंट चाल। तो मैंने भी एक लैपटॉप ले लिया। That's the example of a typical middle class mindset, जो कि क्या चाहता है, मेरे को आज कैश प्लेजर चाहिए। I need that instant gratification, immediate pleasure. I never had that financial guidance कि पीयूष अपने पैसे को पहले इन्वेस्ट करो और अगर कुछ बचता है उसके बाद जाके उसको खर्चा करो, and then spend your money on liabilities. Right, and that's one of the major differences between middle class and wealthy people. Wealthy people, they know the difference between assets and liabilities, and that's what वो अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। Another blunder I did, 2012 में मैंने सबसे बड़ी एक और गलती करी। लोगों ने मेरे को क्या कहना स्टार्ट किया, पीयूष अब तो तू सेटल हो गया है, यू आर मेकिंग सम गुड इनकम, यार अब तो तेरे को एक घर ले लेना चाहिए, रेंट पे कब तक रहोगे? एंड सिंस दैट टाइम मेरे भी भेड़ चाल को फॉलो करने में लग गया और मैंने खुद का दिमाग भी नहीं लगाया और मैंने एक घर खरीद लिया फॉर 33 लाख रुपीज, जहाँ पे मैंने 8 लाख रुपीज का डाउन पेमेंट किया और 25 लाख रुपए का लोन लिया, जहाँ पे मेरी EMI 20 साल के अप्रॉक्सीमेटली बन जाती थी 25,000 रुपीज। एज पर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स दैट वाज अ ब्रिलियंट डिसीजन, बिकॉज मैं 20,000 रुपीज पर मंथ रेंट पे कर रहा था। सो रेंट देने से ऑफकोर्स अच्छा ही है कि खुद का घर ले लो ना। अब इसको मैथ्स देखते हैं। इसमें मेरा जो टोटल EMI अमाउंट था वो 25,000 से थोड़ा ज्यादा था, विच इज 25178। अगर उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई करूंगा तो साल का मैं कितना पे कर रहा था बैंक को,
एज एन टोटल इंटरेस्ट 3.2 लाख रुपीज अ ईयर, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट भी था। अगर मैं इसको 20 साल कैलकुलेट करूं, सो 3.2 लाख रुपीज अ ईयर मल्टीप्लाई बाय 20 ईयर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 60.4 लाख। सो 25 लाख का अगर मैं टोटल लोन लेता हूं, तो मैंने बैंक को एक्चुअली में कितना पे किया? मोर देन डबल, विच इज 60 लाख टू द बैंक। सो अगर मैं इसमें डाउन पेमेंट भी ऐड कर दूं, जो कि मैंने 8 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करी, घर की रजिस्ट्री मैंने 4 लाख रुपए का खर्चा किया, मेरा जो टोटल घर का जो खर्चा था, टोटल कॉस्ट फॉर दैट होम इज 72 लाख रुपीज। बहुत लेटर लाइफ में मेरे को समझ में आया कि एक्चुअली में एक एसेट और एक लाइबिलिटी के बीच में फर्क क्या होता है। बहुत बुरा लगा मेरे को जब मेरे को समझ में आया कि मेरा घर एक एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। मैं उस घर में चाहे भली रहता हूँ, उस घर को मैं बेच नहीं सकता हूँ। माई सो कॉल्ड होम वॉज अ डैम लाइबिलिटी फॉर मी, एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव, बिकॉज इन इंडिया हम घर के मामले में बहुत इमोशनल होते हैं। इंस्टेड इफ आई यूज दैट सेम मैजिकल पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वो जो 25,000 रुपीज जो मैं EMI पे बैंक को दे रहा था, बैंक के लिए नौकरी कर रहा था, अगर वही पैसा मैं अगर उसको इन्वेस्ट कर देता 25,000 रुपए वेरी रिलीजियसली स्टॉक मार्केट में या कहीं पे भी इन्वेस्ट करता, जहां पे बेर मिनिमम 15% इंटरेस्ट भी आता, सो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक वहां भी ऐड हो जाता। सो अभी हम एक काम करेंगे, वापस से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर को मैं खोल लेता हूँ, उस पर सारी फिगर्स अगर डालता हूँ तो मेरे को क्या पता चलता है? 25,000 रुपीज अ मंथ, जिसको मैं अगर 20 साल इन्वेस्ट करता हूँ, वो पता है अमाउंट कितना बन जाता है? 3.79 करोड़। ना लेट्स चेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 15, अभी 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मैं 3.79 करोड़ बना रहा हूँ 20 साल के बाद। अगर वो 15 का 18 कर दूं मैं, तो जो 3.79 करोड़ है ना, पता है कितना बन जाता है? 5.86 करोड़। जस्ट 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होने से माई टोटल अमाउंट जंप फ्रॉम 3.79 टू 5.86 करोड़। अनबिलीवेबल। थोड़े दिन पहले I met somebody who just bought a new home for almost 1 crore, and then he spent so much more on interior designing and paying such a huge EMI to the bank. I congratulated him, but deep down I was actually feeling very sorry for him कि अभी ऑलमोस्ट 20 साल तक बैंक के लिए नौकरी करेगा, उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, एंड इन्वेस्टमेंट के नाम पे उसके पास सिर्फ एक घर है जिसमें उसने मोर देन डबल उसने उसमें स्पेंड कर दिया जस्ट टू सेटिस्फाई हिज ईगो कि मेरे पास तो अब एक घर है। सो इंस्टेड ऑफ लेट्स से 50,000 रुपए की EMI देने की बजाय अगर वो एक रेंटल घर पे रहे जिसका सिर्फ 20,000 रुपए का रेंट दे रहा है, और बाकी जो 30,000 रुपीज अ मंथ है वो अगर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करे एट इवन 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उससे फिगर्स अगर हम ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर में अगर वापस डालेंगे, 30,000 रुपीज अ मंथ इन्वेस्टेड फॉर नेक्स्ट 20 years इज टोटल जो कॉर्पस होता है 72 लाख। बट कंपाउंड इंटरेस्ट अगर उसमें ऐड कर दिया जाए, वो जो 72 लाख रुपीज होता है, पता कितना हो जाता है? दैट बिकम्स 4.55 करोड़, which is far better than investing in the home. That's the magic of financial knowledge. I wish I knew this knowledge before, but better late than never. I had no regrets in life. By making some bad decisions, we can actually learn a lot. So again we say, अकल जो है बादाम खा के नहीं आती है, ठोकर खा के आती है। कभी कभी लाइफ में ठोकर खाना भी अच्छी बात होती है, because we can get to learn so much. So the biggest takeaway is have a long term vision. Long term vision रखिए। स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, इन्वेस्ट एटलीस्ट जो भी आप पैसा बनाते हो उसका एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम एवरी सिंगल मंथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। उस अमाउंट को बिल्कुल भूल जाइए एंड कंटिन्यूसली फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम। एक साइड हसल और बना लीजिए। साइड हसल क्या होता है कि आप जॉब तो कर ही रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशन है वो कर रहे हो, उसके साथ साथ कुछ ऐसा कुछ करो कि आपकी एक इनकम एक और ऐड हो जाए, वो इनकम भी आप अपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, एंड यू विल बी ऑन योर वे टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। राइट, होप इट हैज एडेड सम वैल्यू। Like this video if you really like it. Share this video if you truly love it. And अगर आपका कोई question है, if you really want to ask me something, please put them in the comments below and I'll be very happy to help you. Hope it has added some value. Take care. Bye bye. See you.